Hello students, welcome to Aptitude Wala Maths. In previous few videos, we were discussing questions which have appeared in CAT 2020 and we have discussed slot 3 questions of quants and data interpretation logical reasoning. We'll come back to the normal thing, to the usual stuff that we were doing, and that is discussing concepts. And we were discussing concepts related to geometry. Within geometry, we were discussing circles. In circles, we have discussed all the concepts, theorems, properties, axioms, their derivations, etc. That you need to know to qualify or to do well in any aptitude exam, especially MBA entrance exams like CAT, GMAT, etc. We have also started discussing different questions based on circles. So इसमें हम लोगों ने एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, that is finding out angles in a figure, involving circles. Today we are going to discuss another type of question. Remember one thing students, this categorization of questions in different types is not something that is important. No, but this is only made to make your life a little simpler. देखिए क्या होता है, once you practice enough variety of questions, then you develop this thought that okay, if certain kind of questions come, I need to be aware that no, these are the formulas which will be very handy. These are the approach which will be very useful to solve a certain type of question. So those ideas, those thought process will develop only when you practice good number of questions. Initially, see, my only intention to give you, questions based on categories or types is only to make that development of thought a little faster. अभी क्या होगा, आपको पता रहेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन है तो मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना है. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एंगल जब निकालना होता है तो सर्टेन थ्योरम्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इसी तरह से किसी एक टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो हमें हमें एक बैक ऑफ माइंड में हमें ये पता रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो जरूर ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी लग रहा होगा. तो आप बेहतर पोजीशन में होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के. और ये जो थॉट आता है ये बहुत प्रैक्टिस से आता है. बट उतना प्रैक्टिस करके थॉट डेवलप करने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको शुरू में ही कैटेगराइज कर दूं ताकि आपका एक थॉट डेवलपमेंट में थोड़ा आसानी हो आपको. That's the only idea of behind categorizing questions in different type. Otherwise, there's nothing like no this type of question or that type of question. It's nothing like that. This is only to make your development of thought process a little faster. That's it. The idea is only to make you more to make your position better. You comfortable in solving these types of questions. So the idea is only that to make you comfortable solving different types of questions. Okay, so uh, in today's class, we'll discuss another type of question, which is circle and triangle or quadrilateral. ठीक है? So this is the idea: circle and triangle or quadrilateral. So what are the types of question that we are going to discuss? एक सर्कल होगा, उसके अंदर या तो ट्रायंगल होगा या क्वाड्रिलेटरल होगा, या एक क्वाड्रिलेटरल या सर्कल ट्रायंगल होगा, उसके अंदर एक सर्कल होगा, फिर उसके अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल होगा. तो इस तरह के. सो अ फिगर इन्वॉल्विंग सर्कल एंड ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल. सो ये टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं जिसमें इस तरह के फिगर्स होंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चन. The question is, I'll draw the diagram itself. See, there is a semicircle like this, और इस सेमी सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर है. ओके, सो लेट्स से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इनसाइड दिस सेमी सर्कल. ठीक है. क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर. Find area of square. So we have started with a very simple question. So यहाँ पे भी क्या है, एक सर्कल है या सेमी सर्कल है और उसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है यानी क्वाड्रिलेटरल है. सो इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. अब देखिए, हमें इस स्क्वायर का एरिया निकालना है. हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर. सो अगर हम लोग साइड को ए अज्यूम कर लें
तो हम कह सकते हैं कि हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सो एक ही चीज बचा है इस सब क्वेश्चन में, वो है ए निकालना। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सपोज ये सेंटर है, लेट्स से ओ पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर ये पूरा सर्कल होता तो ओ उसका सेंटर होता। अगर ओ सेंटर होता तो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस। सो आई नो दिस इज रेडियस। नाउ फ्रॉम सिमेट्री हमें पता है कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, ये दोनों लेंथ बराबर होगा सिमेट्री से। तो अगर टोटल ए साइड है तो ये कितना हो जाएगा, a/2। ये भी कितना हो जाएगा, a/2। दोनों कितना हो जाएगा, a/2 एंड a/2। नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ADO। ADO ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो वी कैन से a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। So you can say in triangle ADO, a square plus a/2 whole square is equal to r square, and r पता है कितना है, r 10 सेंटीमीटर। सो ये कितना हो गया, 100। सो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4 प्लस a 5a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब a स्क्वायर आ जाएगा 400 बाई 5 80, तो आ जाएगा 4√5। सो a इज हाउ मच, 4√5। ए आ गया 4√5 तो एरिया भी आ जाएगा। एरिया हो जाएगा 4√5 का होल स्क्वायर, 16 × 5 कितना, 80 सेंट। इनफैक्ट ये करने की जरूरत भी नहीं थी, यहीं पे आ गया। ए स्क्वायर कितना है, 80, और यही तो निकालना था, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज हाउ मच, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक चीज हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे, ये कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल हो या ट्रायंगल हो, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड फॉर द टाइम बिंग कि पाइथागोरस थ्योरम काफी हैंडी होने वाला है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, ऑल राइट, लेट अस मूव ऑन, टेक अनदर सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई विल ड्रॉ द फिगर। फिगर ऐसा है कि एक अगेन अ सेमी सर्कल इज देयर। ठीक है, और इसके अंदर में पहले हम लोगों ने स्क्वायर देखा था, नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो दिस इज अ रेक्टेंगल। लेट्स से द रेक्टेंगल को नाम भी दे देते हैं ABCD। ओके, कहता है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, सेम एज बिफोर प्रीवियस क्वेश्चन। पूछा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ABCD का क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया हमें निकालना है। ओके, सो दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, अगेन यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो मैक्सिमम क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन कुछ ऐसा है कि अगर एक सेमी सर्कल होगा तो उसके अंदर हम कई सारे रेक्टेंगल बना सकते हैं। वन रेक्टेंगल इज दिस, एक और रेक्टेंगल ऐसे बन सकता है, एक और रेक्टेंगल ऐसे बन सकता है। तो हम देख सकते हैं कि हम कई तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं इसके अंदर। तो हर रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग होगा, तो हमें ऐसा रेक्टेंगल ढूंढना है जिसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, और उसका एरिया निकालना है। ओके, ऑलराइट, सो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नाउ लेट अस कम टू दी नो क्वेश्चन हियर। क्या कहता है, सी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगेन जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था, हम मान लेते हैं कि ओ हमारा सेंटर है। ठीक है, ओ सेंटर है। सो आई नो दिस लेंथ इज 10, रेडियस कितना है, 10। सो ये 10 हो गया। नाउ ये लेंथ है, CD इज लेंथ एंड AD इज ब्रेड्थ। नाउ इसको हम लोग 2L अज्यूम कर लेते हैं। 2L इसलिए क्योंकि हमारा नो L/2 फ्रैक्शन में ना आए, ये आधा आधा हमें पता है सिमेट्री से, ये हाफ है और ये भी हाफ है। OD एंड OC आर हाफ ऑफ लेंथ। तो अगर टोटल लेंथ को हम लोग 2L मान ले तो ये भी L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। ब्रेड्थ कितना हो गया, B। ठीक है, इसको आप L भी अज्यूम करते तो फ्रैक्शन में आता है L/2। टू गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शन कैलकुलेशन वी हैव अज्यूम्ड द लेंथ एज 2L। तो हमें जो हमारा जो एरिया होगा, वो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 टाइम्स L इंटू बी। यही हमें निकालना है, 2LB। ठीक है, ओके। नाउ हमें अगेन Pythagoras theorem is coming into picture because ADO is a right angle triangle, so we can again say L square plus B square is equal to 100.
सो आई नो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हमें मालूम है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और हमें क्या निकालना है, 2lb का मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2lb। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 100, ठीक है ना। उसी अगर आप अलजेब्रा में थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन फिर अब बहुत रूटीन हो गया। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। से एल 2lb मैक्सिमम कब होगा, जब एल इंटू बी मैक्सिमम होगा। एल इंटू बी है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2lb आ जाएगा। सो 2 इज कांस्टेंट। सो मैक्सिमम कब होगा, जब एल इंटू बी मैक्सिमम होगा। तो एल इंटू बी मैक्सिमम कैसे आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता 72, ठीक है। कितना होता है 72। और तब पूछता है एल इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते थे। अगर एल की वैल्यू हम लोग एक लेते तो ये उधर चला जाता तो 1, तो बी की वैल्यू कितनी आती, अंडर रूट 71। तो एल इंटू बी कितना हो जाता, अंडर रूट 71 इंटू वन, अंडर रूट 71। अगर एल का वैल्यू 2 लेते तो 2 जब 4 निकल जाता तो 68 आता। तो ये कितना होता, अंडर रूट 68। 68 इज 17 इंटू 4। तो इसमें से अगर 2 बाहर निकाल दें तो एल इंटू बी हो जाता 2 जब 4 रूट 17, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ भी लेते चलिए, एल इज इक्वल टू 4 लेते तो 4 4 जा 16, 16 इससे निकल जाता तो 56 बचता। तो ये कितना होता, अंडर रूट 56। 56 इज अगेन 14 इंटू 4, तो 4 बाहर आ जाता तो 8 रूट 14 ऐसा हो जाता। ऐसे ही करते जाते हैं। अगर हम एल इज इक्वल टू 6 ले लें, एल इज इक्वल टू 6, तो 36 बाहर निकल जाएगा तो 36 बचेगा। तो बी भी हो जाएगा अंडर रूट 36, दैट इज 6। तो इस केस में 6 इंटू 6, एल इंटू बी का मैक्सिमम ये कितना आता है 36। अब देखिए ये तो 36 से कम है, अंडर रूट 71 कितना है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो ये तो 8 9 के आसपास है। ये लगभग 4 के पास, तो 4 इंटू 4 16 के पास ही हो रहा है। अंडर रूट 14 अगर हम कहें तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 4 से कम ही है। तो 8 4 जा 32 से कम ही है ये। बट ये कितना है 36। यानी एल इंटू बी मैक्सिमम कब होगा, जब एल और बी दोनों इक्वल हो जाएगा। सो अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो एल इंटू बी मैक्सिमम तभी होगा जब एल और बी बराबर हो जाएगा। ये आप लोग इनइक्वालिटी में, जब मैं अलजेब्रा की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस डालूंगा, अपलोड करूंगा, तो आप उससे जब पढ़ोगे अलजेब्रा तो वहाँ पे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे बस एक सिंपल सा तरीका मैंने किया है, एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। बट इसके पीछे क्या लॉजिक है, विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स इन अलजेब्रा। बट आप यहाँ पे यही समझिए कि अगर दो नंबर का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर दो वेरिएबल है एल और बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो एल इंटू बी मैक्सिमम तभी होता है जब एल और बी इक्वल हो जाए। तुमको पता है कि एल और बी दोनों इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 100। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 50। सो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट 50, दैट इज 5 रूट। सो ए कितना आ गया 5 रूट। यानी बी, एल और बी को हमने बी मान लिया, एल और बी दोनों को हमने ए मान लिया, तो एक साइड ए ये आ गया। सो वी हैव अज्यूम्ड एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए। सो ए की वैल्यू आ गई। सो दिस आई नो, ब्रेड्थ आई नो, दिस इज 5 रूट 2, ठीक है, दिस इज 5 रूट 2। तो एल कितना है, एल है 2b। सो लेंथ इज 2a, तो ये कितना हो जाएगा 10 रूट 2, 10 रूट 2। सो या 2l का, 2l हो गया कितना 2a, तो ये कितना आ गया 10 रूट 2। हमें क्या चाहिए था 2lb, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 रूट 2 इंटू 5 रूट 2, ये हमारा एरिया हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 5 जा 50 इंटू 200 इंटू 2 200। सी जस्ट चेक इट, आई थिंक वी हैव टेकन दिस 2। ये 2 तो हमने पहले ही ले लिया, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, तो 2l पहले ही ले चुके हैं। 2l है कितना 10 रूट 2। सो 2l इंटू बी, तो ये हो गया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। सी यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्या है ए स्क्वायर है ना, या आर स्क्वायर है ना, तो
अगर एल और बी इक्वल है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी, इसी को समझिएगा। एल और बी इक्वल होना है तभी ये मैक्सिमम होगा एल टू बी। तो बी को, इस एल को बी ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर इज, और ये 100 क्या है एक्चुअली, ये रेडियस का स्क्वायर है। तो यहां से बी आ गया कितना, आर बाई रूट टू। और लेंथ कितना होता है, 2l। 2l इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर रूट टू। और 2l बी कितना हो जाएगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आप ध्यान में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। अगर याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट अवे हो जाएंगे। बट आइडिया क्या था यहाँ भी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। सो वी कैन से इन अ सेमी सर्कल of radius r, maximum area of rectangle will be when ब्रेड्थ कितना होगा, r बाई रूट टू, लेंथ कितना होगा, r रूट टू, और मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। सिंपल सा है ये रिजल्ट। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें खुद ही आ जाती हैं, खुद ही याद रह जाता है। ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत एफर्ट लगाना है। प्रैक्टिस करते करते खुद ही आपको याद भी हो जाएगा। सो डिस्कस टू क्वेश्चंस, लेट्स मूव ऑन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। सी क्वेश्चन ऐसा है कि देयर इज अ सर्कल, ठीक है, उसके अंदर में एक, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, उसके अंदर एक स्क्वायर है। सो दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर फिर एक सर्कल है, और उसके अंदर फिर एक स्क्वायर है, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा है। क्वेश्चन में दे रखा है साइड ऑफ इनर स्क्वायर, इनर मोस्ट स्क्वायर या इनर स्क्वायर, इसके ऊपर भी एक स्क्वायर लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, सो इनर मोस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू से 6 सेंटीमीटर। फाइंड साइड ऑफ आउटर मोस्ट स्क्वायर। ये आउटर मोस्ट स्क्वायर का साइड निकालना है। अगेन देखिए इसमें ये भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन फर्स्ट एंड देन रेफर टू द सॉल्यूशन। तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर होगी। सो आप लोग इसको भी टेक अ पॉज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। ये 6 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो सी एवरीवेयर पाइथागोरस थ्योरम इज कमिंग इनटू पिक्चर। ये कितना हो जाएगा, 6 रूट टू। ये 6 रूट टू है, यानी रेडियस कितना है इसका, ये जो सर्कल है, दिस सर्कल, इसको अगर हम लोग C1 नाम दे दें, सर्कल C1, इनर सर्कल C1, तो उसका डायमीटर पता चल गया कितना, 6 रूट टू। तो ये अगर 6 रूट टू है तो ये भी 6 रूट टू होगा। सी, ये भी तो डायमीटर है ना। एक और डायमीटर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी तो डायमीटर ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 रूट टू। ये 6 रूट टू है तो इसका मतलब ये साइड कितना हो गया, 6 रूट टू, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। ठीक है, अगर हम इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं ABCD, सो वी कैन से अगर ये 6 रूट टू है तो इसका साइड AD भी कितना होगा, 6 रूट टू। अच्छा, तो इनर साइड था 6, तो आउटर साइड, आउट इनर स्क्वायर का साइड था 6, तो आउटर स्क्वायर का साइड क्या आ गया, 6 रूट टू। अब ये 6 रूट टू है, तो बाहर वाला क्या होगा, कितने से मल्टीप्लाई हुआ, रूट टू से। तो यहाँ फिर से कितने से मल्टीप्लाई होगा, रूट टू से। देखिए 6 से 6 रूट टू हो गए, तो 6 रूट टू से फिर क्या होगा, 6 रूट टू इंटू रूट टू। सिंपल सी बात है ना। वैसा पैटर्न भी देख सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो ज्वाइन दिस, इस पूरे को ज्वाइन कर दीजिए, दिस वन। ये आउट, ये बाहर वाला सर्कल से C2 सर्कल जो है, दिस वन, दिस आउटर सर्कल, उसका डायमीटर है ये BD।
तो ये BD कैसे आएगा, ये 6√2, ये भी 6√2, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगेन वी कैन से BD इज √6√2 होल स्क्वायर प्लस 6√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। तो BD आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अगर BD 12 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी तो डायमीटर है ना, तो ये भी 12 है। और अगर ये 12 है तो ये जो बाहर वाला अगर स्क्वायर को अज्यूम कर लें ऐसे PQRS, तो अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। इसको हम डायरेक्टली भी कह सकते थे 12, या हम कहते हैं 6√2 इंटू √2। तो ये 6 बाहर वाला स्क्वायर √2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाहर वाला स्क्वायर फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाहर वाला साइड का स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर का साइड क्या आएगा, इट विल बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं। कैसे, कि जब भी एक स्क्वायर होगा, ठीक है, इसके ऊपर अगर एक सर्कल बनाए और फिर एक स्क्वायर इस तरह से टच करता हुआ बना दे, तो अगर ये साइड ए है तो ये साइड कितना होगा, √2 है। फिर इसके ऊपर जो बनेगा वो कितना होगा, 2a। इसके ऊपर फिर एक सर्कल बना दे और इसके ऊपर फिर एक स्क्वायर बना दे, तो ये स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, 2a। सो a√2a, फिर 2a, फिर 2√2a, इस तरह से चलता रहेगा, √2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। Similar figure है, question is different. See, the question is that there is a circle here. इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक सर्कल है फिर से। ठीक है, सिमिलर टाइप का फिगर है ना, बट थोड़ा अलग है। एंड देन you have a line like this. So let's say this is A, B, C, D and this point is E. ये सर्कल जो है आउटर सर्कल, इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है से 12√2 सेंटीमीटर एंड द क्वेश्चन इज फाइंड डी। हमें डी निकालना है, डी का लेंथ निकालना है। ठीक है, दिस इज माय जॉब एट हैंड। ऑलराइट, नाउ सी, रेडियस हमें मालूम है इसका कितना, 12√2। अगर इसका रेडियस 12√2 है तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर हो जाएगा 24√2। कितना हो जाएगा, 24√2। सो आई नो दिस डायमीटर, दिस इज डायमीटर, ये डायमीटर, ये कितना है, ये 24√2 है। ठीक है, अगर ये 24√2 है, सो अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सी, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए सी डायमीटर है कितना, 12√2। तो इसका मतलब ये साइड कितना होगा, 24, ये साइड भी कितना होगा, 24। तो हमें साइड मिल गया, बाहर बड़े वाले ये जो स्क्वायर है इसका साइड मिल गया कितना, 24 सेंटीमीटर। सो 24 मिल गया। अब वी हैव टू फाइंड डीई। हाउ टू फाइंड डीई? सी, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप लोग कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे बता दिए आपको। अगर इस पॉइंट को टी मान लीजिए, तो हमें पता है किसी भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और एक सीकेंट ड्रॉ किया जाए, जैसे पी और ये टी मान लें और ये ए और बी मान लें, पी टी इज टेंजेंट और ये एक सीकेंट है, तो हमें पता है कि पी टी स्क्वायर कितना होता है, PA into PB. This we know. Now think about this. Same theorem we can apply here. Say D से DT एक tangent है, DT क्या है, tangent है, और this one अगर हम इसको F मान लें, so can say DF is a secant. So D point से DT एक tangent है और DF क्या है, secant है. So you can say DT square is equal to DE into DF. dt स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू डी एफ। अब dt तो हमें मालूम है, ये टोटल साइड है 24, 24 का आधा इधर कितना हो जाएगा, 12, ये भी 12, सो ये 12 हो गया। सो दिस वी नो, साइड इज 12। नाउ
अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर है तो ये राइट एंगल होगा. सो लुक एट ट्रायंगल DAF, DAF, this one, this triangle DAF. ठीक है. नाउ राइट एंगल ट्राइंगल है तो DF तो पता चल जाएगा ना, बिकॉज ये साइड मालूम है आपको कितना है 24, AD इज 24 एंड AF इज 12, AF is 12. So you can say DF is under root 24 square plus 12 square. तो इसमें आ जाएगा 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 12 बाहर ले लेंगे तो ये 4 एक 5, तो अंडर रूट 5 कितना हो गया 12 रूट 5 सेंटीमीटर. सो DF वी नो, DF पता है, DT भी पता है. हमें क्या चाहिए था, D चाहिए था, तो यहाँ से D आसानी से आ जाएगा. सो कैन से DE इज DT स्क्वायर अपॉन DF. DT कितना है 12 है. सो 12 इंटू 12 144 अपॉन 12 रूट 5. 12 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 12 बाई रूट 5 सेंटीमीटर. ठीक है. सो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लग रहा है. सो डी निकालना था तो DF वाज अ सीकेंट, सो D उसका एक पार्ट है, सो D इंटू DF आएगा, D निकल जाएगा अगर बाकी दो मालूम है तो. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बट अगेन वो क्लिक करने की बात है. क्लिक कर गया तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट, लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन. और क्वेश्चन देखते हैं. सी देयर इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइक दिस. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक इन सर्कल ड्रॉ किया गया है. ठीक है. और फिर दोनों साइड को टच करता हुआ एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है. फिर दोनों साइड को टच करता हुआ और सर्कल को टच करता हुआ एक और सर्कल ड्रॉ किया गया है. इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R3 है. सो यू हैव टू फाइंड R1 is to R2 is to R3. ये हमें निकालना है. It is given that triangle ABC, say this is ABC triangle. So it is given that triangle ABC is equilateral triangle. ये equilateral triangle दिया हुआ है. आपको R1 is to R2 is to R3 निकालना है. Again, ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है, तो सर्कल एंड उसी थीम पे चल रहा है क्वेश्चन, सारे वैसे ही हैं. अब इसको भी सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा. ठीक है. सो पॉज दिस वीडियो, सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट एंड देन यू लुक एट द सॉल्यूशन. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट. हमें अगर साइड अज्यूम कर ले, से ए साइड अज्यूम कर ले ए, तो हमें पता है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है, ठीक है, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और आप यहां से देख सकते हैं कि सारे नो ये टच, जो पॉइंट जहां पे सर्कल टच कर रहे हैं उसको मिला दे वर्टेक्स से इस तरह से, तो ये रेडियस है, और रेडियस और ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये परपेंडिकुलर है. ठीक है. आप चाहें तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल. ये भी क्या होगा, रेडियस और टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर. रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर. अगर ऐसा है तो ये सारे लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है. ये भी समझ में आ रहा है. सो अगर हम इसको अज्यूम नाम देते हैं PQ, इसको नाम दे देते हैं RS, तो वी कैन से PQ is parallel to RS, RS is parallel to BC. ये सारे क्या है आपस में, पैरेलल है. ओके. नाउ हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग इट. R1 R2 R3 आएगा कैसे. R3 तो आसानी से आ जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस कितना होता है, a/2√3. सो दिस वी नो. R3 वी नो, R3 इज a/2√3. ये तो हमें पता है आसानी से. ठीक है. ओके. अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको मिला दें, इसको अगर आप मिला दें ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा था A, सिमेट्री से ये साइड A है, तो ये कितना हो जाएगा a/2. तो अगेन ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लग रहा है. एवरीवेयर पाइथागोरस थ्योरम इज कमिंग इनटू पिक्चर. तो a² माइनस a²/4, 3a² का 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √3a/2.
सो दिस होल थिंग इज √3a/2। उसमें से यहां तक दिस पोर्शन इज हाउ मच, ये रेडियस है ना, तो ये रेड डायमीटर हो गया, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, a/√3। तो ये पूरा था √3a/2, उसमें से ये पोर्शन कितना हो गया, a/√3। तो अगर हम इसको कुछ एक पॉइंट को कुछ अज्यूम दे दें, जैसे t दे दें, तो हम कह सकते हैं कि AT कितना हो जाएगा, √3a/2 minus a/2√3। 2√3 will be the LCM, a/2√3, sorry, this is a/√3। नहीं, ये पूरा कितना, a/2√3 तो रेडियस था, दिस होल थिंग इज डायमीटर, तो डबल, तो कितना है, a/√3, so a/√3, so 2√3 is the LCM, so √3 से मल्टीप्लाई होगा 3a minus 2a, तो ये कितना आ गया, a/√3, so a/2√3। सो ये है a/√3, और ये पोर्शन कितना है, a/2√3। ठीक है, ओके। तो अगेन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस पोर्शन इज a/√3 एंड दिस पोर्शन इज a/2√3। ठीक है, ये कितना है, a/2√3, करेक्ट नो। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है एक और चीज कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ARS। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ARS, क्यों, बिकॉज RS इज पैरेलल टू BC। हमें ये भी पता है ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन हो जाए, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। सिमिलरली ARS एंड ABC, ARS एंड ABC, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो, सारे रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो सी, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसको हम लोग टी, यहाँ पे टी दिए थे ना, टी बोले थे, तो हम कह सकते हैं कि AT/, इसको मान लेते हैं से डी, सो AT/AD कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, मीडियन है, एल्टीट्यूड है, जो भी है, सभी है, मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये मीडियन है, बड़े वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल में AD मीडियन है। सो AT/AD कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया a/2√3। देखिए यहाँ पे यही आया ना, a/2√3, और ये टोटल कितना है, ये टोटल है √3a/2। ये टोटल कितना है, √3a/2, √3a/2। सो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, √3 तो कितना आ गया, 1/3। इसका मतलब है AT/AD कितना आ गया, 1/√3। अगर AT/AD 1/√3 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो क्या होगा, 1/√3। तो वी कैन से AB, AR/AB, AR/AB भी कितना होगा, 1/3। ठीक है, अब ये समझ में आ गया हमें कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 1:3 में है। तो अगर ये टोटल है A, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/3। ये कितना हो जाएगा, a/3। ठीक है, तो पहला सर्कल जो था, वो क्या था, वो था बड़े वाले ट्रायंगल का इन सर्कल। दूसरा सर्कल जो था वो क्या था, छोटा वाले ट्रायंगल का इन सर्कल। ठीक है ना, तो ये R3 था, ये R2 था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सारे रेशियो सेम होते हैं, तो इसका इन सर्कल और बड़े वाले ट्रायंगल का इन सर्कल का रेशियो भी सेम होगा, कितना, 1:3। सो वी कैन से that R2 is to R3 is also 1:3। वंडरफुल, R2 is to R3 आ गया। अब सोचिए, आप खुद ही सोचिए सिमेट्री से, अगर इन दोनों रेडियस का रेशियो 1:3 है, तो इन दोनों रेडियस का भी रेशियो क्या होगा, 1:3 होगा ना, सेम ही चीज तो है ना, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें एक सर्कल और फिर ऊपर एक और सर्कल।
तो अगर इन दोनों का 1:3 आया था तो इन दोनों का भी क्या आएगा, 1:3 ही आएगा। सो हमारा काम आसान हो गया। सो R1:R2 हो गया 1:3 एंड R2:R3 भी कितना हो गया, 1:3। So we can say uh, R1:R2:R3 is 1:3:9। देखिए ये भी 1:3, ये भी 3/9 कितना होगा, 1/3। सो R2:R3 भी 1:3, 3/9 is 1/3 एंड R1 और R2 भी कितना हो गया, 1:3। सो द आंसर इज 1:3:9। 1:3:9। ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमेट्री, तो सिमेट्री है फिगर में, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड भी था ये क्वेश्चन। हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो रहा है, बट साथ में सिमिलर ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट है। सो दिस वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। So we have discussed no few questions in today's class. We'll continue with the same theme. एक और वीडियो में हम लोग कुछ थोड़े बहुत और क्वेश्चन लेंगे जो इसी थीम पे बेस्ड होगा कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, या फिर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, या उसके बाहर एक सर्कल है। इस तरह सर्कल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जैसा मिक्स्ड फिगर वाला कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। ठीक है। सो विल कम अगेन विथ वन मोर वीडियो ऑन द सेम थीम, सेम टॉपिक। ठीक है। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।